Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 28th of November. In this video a total of 20 important news will be discussed for the day. Here we will be talking about unit cabinet approvals. Then we will be talking about jobs at your doorstep report that has been released by Dharmendra Pradhan and Mansukh Mandviya ji. Then we will be talking about a tripartite MOU that has been signed to boost healthcare and education. Then we will be talking about a counter-terrorism exercise that was held in Gurugram. Next thing we will be talking about Surbi magazine that has been unveiled, the second edition of which we will be discussing all these things in detail. So stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe as we are one-stop solution for current affairs. The content we provide on daily basis is top-notch and we make sure to upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, the weekly current affairs, the monthly current affairs as well as the topic wise current affairs are uploaded daily. That helps you in your learning. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. The first thing that we are talking about is cabinet approvals, right? Under national affairs. First thing first, Union Cabinet is chaired by whom? It is chaired by Prime Minister Narendra Modi, and this is his third term as the Prime Minister of India, and this is the 18th Lok Sabha we are talking about. So the first thing here we are talking about, the first approval is the continuation of Atal Innovation Mission, and the second edition of this has been launched. Right, this has been launched with a budget of 2,750 crore rupees till 31st of March 2024. And as the name suggests, Atal Innovation Mission. This mission is a flagship initiative of the Government of India that has been launched under Niti Aayog. The aim of this mission, Atal Innovation Mission, is to make India, or to make Viksit Bharat, right? That will promote innovation, that will promote research and development, that will promote entrepreneurship, right? That will help the startups to grow. Right, the next thing we are talking about is One Nation One Subscription. This is a very interesting thing that has been launched. Actually all of the things that we will be talking in this video will be very important. The second is your One Nation One Subscription scheme, and it has been launched to promote the research and development in India. With this new One Nation One Subscription, this has been launched for 3 years, that is from 2025 to 2027, and under this One Nation One Subscription, students will be able to access the research paper here, right? Seamless access of research paper will be there for various articles, various research journals for higher education and research and development laboratories. It will be available, right? Take a note of this. Then third thing is the launch of the National Mission on Natural Farming. This is a standalone centrally sponsored scheme that will come under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and it has been launched for 2,481 crore rupees, right? With this mission, you will be seeing the farmers will be benefited a lot, right? They will be seeing that we will be getting more nutritious food, more quality of food under this mission. Next is here you can see the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi. Next thing is one more thing here. This PAN 2.0 has also been launched. Your PAN number, right? You have a PAN card, right? A better version of it has been launched. That is your PAN 2.0. In this PAN 2.0, you will be seeing that QR code will be there, right? Then photo will also be there in this PAN card. So these two things will be updated here. Next,
Then we saw the continuation of Atal Innovation Mission, and 2.0 has been launched for the same. Next is Dharmendra Pradhan and Dr. Mansukh Mandaviya has launched World Bank's Jobs at Your Doorstep report. Right? So World Bank, they have released a report. The reports is the jobs at your doorstep. Right? This was launched by Dharmendra Pradhan, who is our education minister, and Mansukh Mandaviya, who is our labor and employment minister. This was launched during an event in New Delhi, and there are 6 states that has been covered in this report. That includes your Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, and Rajasthan. Correct? This report talks about the skilling gap, that what is the gap we are seeing in the skills of the individuals who are applying for the job. Right? Through this report we will be seeing that better skilling opportunities will be provided, better job opportunities will be provided to individuals, youths in these 6 states. Right? Also, if you are knowing that NEP 2020 was launched, that is your National Education Policy 2020. The aim of this National Education Policy is basically to improve the education that are being provided in the schools. Right? And remember, these 6 states that we saw, they comes under star states. Right? These are the stars state. This initiative was launched in 2021 in order to provide better education and better governance of school education in these selected states. Moving on next, and here you can see these are the 6 states, right, that comes under the stars. That is your result for that is your teaching, learning and results for the states that are known as star states. Strengthening teaching, learning and results for states. Next is Ministry of Health and Family Welfare. This ministry has signed a tripartite MOU with IMS, BHU and MOE. Tripartite MOU means there are 3 companies here, 3 organizations in this tripartite MOU. First is your Ministry of Health and Family Welfare. Second is your IMS. What is IMS? That is your Banaras Hindu University. Correct? Indian Institute of Medical Science of Banaras Hindu University. Right? And third thing is your Ministry of Education. So these 3 organizations, they have signed a memorandum of understanding, that is an MOU, and this MOU will be providing funding, right, funding to AIIMS under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. This funding in AIIMS will benefit the healthcare sector. Better services will be provided here. Better clinic care delivery will be provided. Right? As service will be better, then the customer satisfaction will also be better. And it will also help to lower the cost of expenses for the medical care for individuals. Correct? So to provide the financing here to this AIIMS, correct, these 3 organizations have recently signed a memorandum of understanding to boost health and education. How education? As funding will be provided, there are multiple doctors also at AIIMS who are, and multiple students also who are doing practice here. So for them also better opportunities will be there for learning. Next is NSG's joint counter-terrorism counter IED exercise was concluded in Gurugram. Gurugram is in Haryana. What is the name of this exercise? First thing first, it is your National Security Guard. They concluded the 10th edition of National Joint Counter-Terrorism Exercise by the name Exercise Agni Pariksha. So this was the counter-terrorism exercise and the 10th edition of this Agni Pariksha exercise. Next thing is the 8th edition of the Joint IED exercise, that is your Exercise Visfot Kavach. IEDs are your bombs basically. Right? So this is the Exercise Visfot Kavach, the 8th edition of which that was held in Gurugram, Haryana. So 2 exercise. First, the 10th edition of Exercise Agni Pariksha, and second, the 8th edition of the IED exercise, that is Exercise Visfot Kavach. They too were concluded. And these exercises saw a total participation of 81 teams from various states. Next is DADF. DADF is your Department of Animal Husbandry. It has distributed Raj Bhasha Awards, and 2nd edition of Surbhi magazine has been unveiled. So 2 things. First thing first, DAHD, that is your Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. Right? They have recently organized an official language or award ceremony that was held
right, to honor the winners of various essay and poetry competitions. I repeat, this official language award to honor the winners of essay and poetry competitions with Raj Bhasha Awards that was held during the Hindi Pakhwada that was held in September 2024. Then in this, remember, the second thing we are talking about is Surbhi magazine, and that too the second edition of this Surbhi magazine has been unveiled, right? This magazine highlights the department's efforts. They will promote Hindi, also will feature various articles, poetries and essays that has been written by employees. Next here is international affairs. India has ranked 23rd globally in the Sustainable Trade Index 2024. Right? I repeat, Sustainable Trade Index STI 2024 have was released, and India is the fifth largest economy in the world. We know that fifth largest economy in the world, but here in this index our country was on the 23rd position. Correct? Within 23rd position. Apart from this, remember, here you can see, as per this STI, New Zealand has again emerged as the most sustainable trade economy for the third consecutive time. So question can be asked, which is the most sustainable trade economy in the world? It is New Zealand, and it is for the third consecutive time that they have secured the top position. UK second and Australia was third, and our country India was on which position? India was on the 23rd position here. Next, you can see the list also here, the ranking of the countries, and our India on the 23rd. Moving on, next we are talking about banking and finance. RBI has released a data that is talking about the net inflow rise, right? I repeat, we are talking about the net inflow rise in India, correct? That means the money in India is coming more. So according to Reserve Bank of India, they have released the November monthly bulletin, and the net inflows through the external commercial borrowing has increased from $6.8 billion in the first half of 2024, and it has increased from 6.8 billion to 7.9 billion dollar in the first half of FY25. So as compared to last year, we are seeing an increase here in the external commercial borrowing. Correct? The inflows, the money that is coming in India has increased here. Apart from this, you can see here the outward remittance under the liberalized remittance scheme of RBI declined by 14.8% year on year. That means the outward remittance, that is the money going from India to outside countries, has reduced by 14.88%. Also, as per RBI, the gross foreign direct investment in India has also increased by 25.7% year on year, from 33.5 billion in the first half of last year to 42.1 billion in the first half of this FY25. Next is RBI, that is Reserve Bank of India, and MMA. They have signed a memorandum of understanding to boost the cross-border transactions using the local currencies. MMA, what is this? This is your Maldives Monetary Authority, right? That is RBI and MMA. They have signed this MOU to establish a framework to promote the use of local currencies, that is Indian rupees and Maldivian rupiah will be used here for cross-border transaction. Correct? And this MOU will boost the use of Indian rupees and Maldivian rupiah in the current transaction, and you will be seeing that the economies of these two countries will also grow as these currencies will be used for trade purposes. Next is IndusInd Bank and BFIL, that is your Bharat Financial Inclusion Limited. So IndusInd Bank and BFIL, they have partnered with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to launch Bharat Sanjeevani Krishi Uttham. Right? This IBL, that is in the IndusInd Bank Limited, it is Mumbai, Maharashtra based. This BFIL, that is your Bharat Financial Inclusions Limited, this is Hyderabad, Telangana based, and this is a 100% subsidiary of IBL. Correct? They have partnered with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to launch this Bharat Sanjeevani Krishi Uttham initiative. Right? This will drive the corporate social responsibilities in various initiatives of BFIL and FIL.
Correct? The aim here is that will promote your sustainable farming. It will help us to improve the income of farmers in various states, that includes your Odisha, Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, West Bengal, and so on. Here, this partnership under this MOU, you will be seeing, or under this partnership, you will be seeing the use of IT solutions will be increasing. This will help the farmers to make better data driven decisions. If we talk about this Bharat Sanjeevani Krishi Utthan initiative, under this initiative, formation and promotion of 10,000 farmer producer organization, that is FPOs, will be done, and this will provide a better robust framework to empower these FPOs. Under this initiative, these two organizations will set up a centralized project management unit at national level in 11 target states, correct, to monitor these FPOs. Then if we talk about IndusInd Bank, who is the Managing Director and Chief Executive Officer here of IndusInd Bank? Sumant Kathpalia, headquarter of which is in Mumbai, Maharashtra. Next is Shriram Mutual Fund. They have launched multi-sector rotation fund. I repeat, Shriram Mutual Fund, that is managed by Shriram Asset Management Company. They have launched an NFO, that is a new fund offer that comes under Shriram Multi-Sector Rotation Fund. This is an open-ended scheme. The NFO was open for subscription from 18th of November and will close on 2nd of December. Next is appointments and resignation. Abdullah Maiga, as you can see him in the picture, has been appointed as the new Prime Minister of the Republic of Mali. Correct, take a note of this. He is 43 years of age and he is appointed as the new Prime Minister of Mali. He will be succeeding whom? He will be succeeding Choguel Kokala Maiga. Next, Harsha Vardhan Agarwal took over as the president of FICCI. As you can see him in the picture here, right? He is Harsha Vardhan Agarwal, the vice chairman and managing director of Emami Group Limited, and he took over as the president of FICCI for FY25. This was during the 97th FICCI's annual convention that was held in New Delhi. He will be succeeding whom? He will be succeeding Anish Shahat, the Chief Executive Officer and Managing Director of Mahindra Group and Mahindra Limited. Right? Next, one more thing is there. Anant Goenka, the Vice Chairman of Mumbai Maharashtra-based Rama Prasad Goenka Group, has been elevated to the Senior Vice President from the position of Vice President. Next we are talking about Justice Surya Kant, right? He has been appointed as the Chairperson of SCLSC, that is your Supreme Court Legal Services Committee. I repeat, Justice Surya Kant has been appointed as the new Chairman of Supreme Court Legal Services Committee by the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna. He will be succeeding whom? He will be succeeding B.R. Gavai. Next, we are talking about Sonu Sood, the famous actor, and he has been appointed as the brand ambassador and advisor for the Thailand tourism. That means he will be promoting the Thailand tourism between India, or we can say he will be promoting tourism between India and Thailand. Correct? So Sonu Sood, Indian actor and philanthropist, has been appointed as brand ambassador and tourism advisor for Thailand. Next is acquisition and mergers. Morgan Stanley, Society Generale, and many others have acquired stake in PNB Housing Finance worth 2,301 crore rupees. I repeat, many organizations that included your Morgan Stanley Asia, Society Generale, and other entities, they acquired 6.82% stake, that is 1.77 crore shares of PNB Housing Finance Limited, a subsidiary of Punjab National Bank, through an open market transaction of 1,664 crore rupees. Morgan Stanley Asia, they acquired 5.4% stake in two separate transactions. Next is science and technology. We are talking about SpaceX, owned by Elon Musk, and it is expected Elon Musk will become the first trillionaire in the next 3 to 4 years. That means by 2027 or 2028, he will become the first trillionaire in the history. Coming back, SpaceX has launched the 6th flight test of Starship rocket, aborts the attempt to catch booster. I repeat, SpaceX, they have launched the 6th flight test of the Starship rocket, as you can see it in the picture here, right? This was tested from South Texas, the USA, and this super heavy booster of the rocket crashed where it crashed in Gulf of Mexico. Correct? Take a note of this. And this was the 6th launch of the fully assembled Starship since 2023, and the first 3 ended up exploding. Next
Next here is we are talking about sports. Archery, we are talking about the archery sport, archery, and India has finished third at the GT Open 2024. Here you can see Jyoti Surekha Venom has won the gold and Abhishek Verma has won the silver. Here as you can see the gold and silver respectively. Correct. India was at the third position on the medal tally with 2 medals, that is 1 gold and 1 silver. Correct. This was during the GT Open 2024. It was held in Luxembourg. Right. And Indian archer Jyoti Surekha Venom won gold and Abhishek Verma won silver here. Who topped the medal tally here? It is Netherlands that secured the top position in the medal tally with 2 gold medals. Next, here you can see the medal tally also. Next is IBSF World Billiards Championship 2024 was held and Pankaj Advani has won the 28th World Billiards title. I repeat, Indian cueist Pankaj Advani won the International Billiards and Snooker Federation World Billiards Championship title by defeating England's Robert Hall by 4-2 in Doha, Qatar. This marks his historic 28th world title and also the 7th consecutive world title. Next is obituary. Legendary Sarangi Maestro and Padma awardee Pandit Ram Narayan has passed away at the age of 96 in Mumbai, Maharashtra. He was honored with Padma Shri in 1976, Padma Vibhushan in 1991, Padma Vibhushan in 2005. So Padma Bhushan in 1991 and Padma Vibhushan in 2005. Next is important days. World AMR Awareness Week is observed from 18 to 24th of November. What is AMR? AMR is your antimicrobacterial resistance. What is this antimicrobial resistance? This is basically when we take a medicine for way too long, our body develops a resistance against it. Even if we are continuously using the same medicine for a very long time, the effectiveness of that medicine on those bacteria, on those microbes reduces. Correct? They will become aware of those when they will adapt accordingly. So we also need to keep changing our medicines, right? So this World Antimicrobacterial Awareness, also known as World Antimicrobial Awareness Week, observed from 18 to 24th of November. There is a theme for this that I want you all to remember: educate, advocate, act now. Right? So that's all for the day, students. Now let's move to revision part. We talked about the cabinet approvals. Then Dharmendra Pradhan and Mansukh Mandviya ji has launched World Bank's Jobs at Your Doorstep report. Then Ministry of Health and Family Welfare, they have signed a tripartite MOU with IMS BHU and Ministry of Education to boost the healthcare and education. Then joint counter-terrorism, counter-IED exercise was held. This was the 10th edition of this joint counter-terrorism and 8th edition of this exercise held in Gurugram. DA at DF, they have distributed Raj Bhasha Awards. The second edition of the Surbhi magazine also unveiled here. Then India ranked 23rd globally in the Sustainable Trade Index 2024. Then RBI released the data that stated the ECB inflows has risen to 7.9 billion in the first half of 2025, right, from 6.8 billion to the last year. Then RBI and MMA, they have signed an MOU to boost the cross-border transaction using the local currencies. Then IndusInd Bank and BFIL, they have partnered with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to launch Bharat Sanjeevani Krishi Utthan. Then Shriram Mutual Fund, they have launched multi-sector rotation fund. Abdullahi Maiga has been appointed as the new Prime Minister of Mali. Then Harsha Vardhan Agarwal took over as the President of FICCI. Next is Justice Surya Kant has appointed as the Chairperson of SCLSC. Then Sonu Sood appointed as the Brand Ambassador and Advisor for Thailand Tourism. Morgan Stanley, Society Generale and other have bought stake in PNB Housing Finance Limited. Then SpaceX, they have launched the 6th flight test of the Starship rocket. Then archery, we are talking about this and from India. Jyoti Surekha Venom has won the gold and Abhishek has won silver in the third edition of the in the GT Open, and where India secured third position in the medal tally. Then IBSF World Billiards Championship was held and Pankaj Advani has won the 28th World Billiards title. Legendary Sarangi Maestro and Padma awardee Pandit Ram Narayan passed away. World Antimicrobial Resistance Awareness Week observed from 18 to 24th of November. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part.
Where is Children's Day or Bal Divas annually observed across India? On 14th of November, we observe Children's Day or Bal Divas, and this year it was 135th anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, on whose birthday we observe this Children's Day. Pandit Jawaharlal Nehru, he was the first Prime Minister of India. Correct? And for his love and affection towards children, this day is observed. Also, Bharat Ratna, that is India's highest civilian award, it was awarded to Pandit Jawaharlal Nehru ji in 1955. Next, which Indian actor has recently honored by the Amitabh Bachchan with Akeni Nageshwar Rao National Award 2024 in Hyderabad, Telangana? So, Chiranjeevi, right? Amitabh Bachchan facilitated actor Chiranjeevi with the Akeni Nageshwar Rao National Award, that is for the celebration of the 100th birth anniversary of Akeni Nageshwar Rao in Hyderabad, Telangana. Right, this Akeni International Foundation, when was it established? In 2005. Next, which company has recently signed a memorandum of understanding with Korea's POSCO Group for the development of steel, battery materials and renewable energy sector in India? So this is your JS Group. Next, which department has recently organized the National MSME Cluster Outreach Program in partnership with Small Industrial Development Bank? It is Department of Financial Services, right? This, remember here it is Department of Financial Services. They have organized this National MSME Cluster Outreach Program that was in collaboration with SIDBI. Next, what was the allocated budget for the recently launched scheme for strengthening the medical device industry by Union Minister Jagat Prakash Nadda, that is JP Nadda ji? So what was the allocated budget for strengthening the medical device industry so that we can grow this medical device sector in India? So the budget was 500 crore rupees that was allocated. Also, PLI scheme. PLI is your production linked incentive scheme launched by Government of India in 2020, have paved a path, right, where we will be seeing growth and innovation and industrial development in manufacturing of various goods. That is also considered here. Next, name the space tabletop exercise that was recently conducted by Defense Space Agency in New Delhi. The name of the exercise, Antriksh Abhyas, right? And this Defense Space Agency, they successfully conducted this space tabletop exercise, Antriksha Abhyas. It was held from 11th to 13th of November in New Delhi, and the main aim of this exercise was basically to focus the discussions on emerging space technologies, right, and also in India's space program. Next, which country has recently received two waterjet propelled fast interceptor craft from the Indian Navy? So which country has received these two waterjet propelled fast interceptor craft, that is your FICs? It is Mozambique. Correct. And these FICs were delivered to the Mozambique using which INS? It was INS Ghadial. Next, India has recently signed the host country agreement for establishing the BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Energy Center, that is located where? That will be in Bengaluru, Karnataka. So India signed this HCA, host country agreement for establishment of the BIMSTEC Energy Center, that will be in Bengaluru, Karnataka. Next, what is the maximum investment limit for a foreign portfolio investor according to the introduced RBI's operational framework for reclassification of investments by FPIs to FDIs? So the minimum here is, what is the maximum limit for FPI investors? It is 10% of the total paid up capital or fully diluted basis. Next, which book has recently won the 2024 Booker Prize and became the first book set in space to win the award? It is Orbital, right? British author Samantha Harvey has won the Booker Prize for the fiction novel Orbital that became the first book set in space to win this prize. Also here Harvey, or let me write the name also, Samantha Harvey. Here remember Samantha Harvey, she became the first woman to win the award since 2019, and she was also awarded with $64,000 as a prize money. Next, who became the first Indian to win Miss Grand International 2024 at MGI Hall in Bangkok, Thailand? So Rachel Gupta, she is from Punjab state, and she won the 12th edition
of Miss Grand International for 2024, right? And this was held where? In Bangkok, Thailand. Take a note of this. Now she has become the first Indian and the third Asian to win or to be crowned as Miss Grand International. Next, who was recently appointed as the Prime Minister of Mauritius for the third time? So, N. Ramgoolam, that is Naveen Chandra Ramgoolam, has been appointed as the Prime Minister of Mauritius for the third time. Next, who has recently become the youngest rated chess player in the world at the age of 3? Anish Sarkar, right, became the youngest rated chess player in the world at the age of just 3 years, right? And he's Kolkata based. Next, who was recently presented with the XTIC Award 2024 for innovation from the IIT Madras, Chennai, Tamil Nadu for their virtual reality film, that is Le Mask. So, who was recently presented with this award? So, AR Rahman was presented with this award for the VR film, that is virtual reality film Le Mask. Next, the government of India has recently reconstituted the Interstate Council, an important body for enhancing center-state and interstate cooperation or coordination. Who is appointed as the chairperson of this Interstate Council? So, who has been appointed here? So, the Prime Minister, that is Narendra Modi, has been appointed as the chairperson of this Interstate Council. Right. Apart from this ISC, this ISC, right? It was reconstituted previously in 2022, and it is a constitutional body, that is, it is not a permanent body, and it is established under Article 263 of the Constitution of India. Also remember, Government of India has also restructured the standing committee of the ISC and has appointed Amit Shah as the chairperson of this standing committee. Next, students, is our homework section. The first question that I want to ask you is, tell me, recently, who was the chairperson of the 77th session of the WHO Regional Committee? Right? Who was elected as the chairperson here? Then, second, from India, who attended the 19th edition of East Asia Summit? Third question, tell me recently, or we can tell me what is the repo rate and for how long it has remained unchanged. Correct? So these are your 3 homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button and do subscribe to us if you are new to our channel. Do share the link of this video with your friends, cousins, relatives, and let them know about this interesting platform. Now students, let's move to the Hindi segment of this video. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स 28 नवंबर पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैबिनेट अप्रूवल्स के बारे में। देन हम बात करेंगे जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई धर्मेंद्र प्रधान एंड मनसुख मांडविया जी के द्वारा मिलके। देन हम बात करेंगे एक ट्राईपार्टाइट MOU की जो कि साइन हुआ ताकि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को हम बढ़ावा दे सकें। देन हम बात करेंगे काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज एंड काउंटर IED एक्सरसाइज की जो कि गुरुग्राम हरियाणा में कंक्लूड हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे DADF, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया राज्यसभा अवार्ड्स को, एंड सुरभि का सेकेंड एडिशन यहाँ पे रिलीज़ किया गया। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स आप नए जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। हम वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे लाते हैं ताकि आपकी लर्निंग और बेटर हो सके, एंड वी मेक श्योर टू अपलोड द बेस्ट कंटेंट फॉर यू, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes.
It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। तो कैबिनेट अप्रूवल्स देखते हैं। जो कैबिनेट अप्रूवल्स में अगर हम देखें, यूनियन कैबिनेट चेयर किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये इनका थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ये 18th लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो इस बार बड़े इंटरेस्टिंग अप्रूवल्स हैं। सबसे पहला तो याद रखेंगे हम अटल इनोवेशन मिशन को, जो कि नीति आयोग के अंडर लॉन्च किया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अटल इनोवेशन मिशन 2.0, राइट। इसको 31 मार्च 2028 तक अभी एक्सटेंड कर दिया गया विद एन आउटले ऑफ 2750 करोड़ रुपीस। अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च क्यों किया गया था? इसका मेन एम है कि हम कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात कर सकें, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें, स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकें ताकि वो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट के एंड इक्विटी यहाँ पे क्रिएट करें। सेकंड चीज़ आ जाती है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये भी लॉन्च किया गया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे आपका होगा जो भी रिसर्च पेपर्स होंगे, जो भी आपके आर्टिकल्स होंगे, रिसर्च आर्टिकल्स, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, राइट, इस सब्सक्रिप्शन के अंडर। 6000 करोड़ की ये स्कीम रहेगी, 3 साल के लिए स्कीम रहेगी, 2025 से 2027 तक। जिन बच्चों को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है या फिर जिनको रिसर्च लिखना है, करेक्ट रिसर्च पेपर लिखना है या फिर अपनी रिसर्च करनी है, कोई डाटा कलेक्ट करना है किसी भी रिसर्च पेपर से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकेंगे, राइट। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन रहेगा एंड सभी जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये लॉन्च किया गया है, राइट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड इसके अंडर मेन एम क्या रहेगा कि हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, राइट, टेक्नोलॉजी की मदद से हमें इसको आगे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंड मनसुख मांडविया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। इनके द्वारा यहाँ पे अभी वर्ल्ड बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, जिसमें बताया गया कि इंडिया में जो जॉब्स हैं, राइट, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसका इंक्रीज़, और ये लोगों की जॉब्स क्यों ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है ना, उसकी बड़ी कमी है। हमें सरकार को इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे ताकि स्किल्स प्रोवाइड कराए जा सके लोगों को, और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स प्रोवाइड कराने के ऊपर सरकार का बहुत ध्यान रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो इवेंट, ये जो रिपोर्ट है, ये कवर करती है बेसिकली 6 स्टेट्स को। ये 6 स्टेट्स आ जाती हैं स्टार स्टेट्स। स्टार स्टेट्स कौन सी हो गई? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसके अंडर आपकी आ जाती हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं ट्राईपार्टाइट एमओयू। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IMS-BHU। ये IMS क्या है? ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन BHU वाराणसी यूपी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ये IMS-BHU, इनके द्वारा MOU साइन हुआ या फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, MOU साइन हुआ, जहाँ पर हम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। यहीं पे इनके थ्रू फंडिंग की जाएगी, फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे एम्स को, राइट। एम्स में प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंस मिलेगा तो वहाँ पे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, टर्शरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इससे क्या होगा, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, राइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा एंड जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस जो बढ़ गए थे वो कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए दिखेंगे इन मेडिकल सेक्टर। एंड ये जो फंडिंग की जाएगी अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर करी जाएगी। इससे क्या होगा, स्टूडेंट फैसिलिटी को फैकल्टी को बेनिफिट मिलेगा, रिसर्च प्रोफेशनल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल्स है तो यहाँ पे रिसर्च होती है, स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उनकी लर्निंग और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर NSG, जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुई एंड काउंटर IED एक्सरसाइज हुई। तो ये जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज की बात करें तो ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज थी? तो ये आपका 10वां एडिशन था नेशनल जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का, जिसका नाम रहेगा एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। दूसरी बात करते हैं, दूसरी एक्सरसाइज है 8वीं एडिशन ऑफ नेशनल जॉइंट काउंटर IED एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज विस्फोट कवच। ये कहाँ पर हुई? हरियाणा में हुई। 3 से लेकर 16 नवंबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था।
नेक्स्ट आ जाते हैं DADF क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। इन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया राजभाषा अवार्ड को। एंड इसी के साथ साथ पहले राजभाषा अवार्ड्स की देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिन्होंने ऑनर किया ऐसे एंड पोएट्री कॉम्पिटिशन के विनर्स को विद राजभाषा अवार्ड्स। कब? ड्यूरिंग हिंदी पखवाड़ा, जो कि सितंबर 2024 में हुआ। पहली चीज़ तो ये हो गई। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर अभी सुरभि नाम की सेकेंड एडिशन ऑफ दिस मैगजीन को यहाँ पे लॉन्च किया, जिसमें हम देखेंगे हिंदी को प्रमोट किया गया है, वेरियस आर्टिकल्स, पोइट्रीज एंड एसेस को एम्प्लॉयज़ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पर। हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की। तो ये ये आपका सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स को भी रिलीज़ किया गया, राइट। एंड इसमें अगर हम देखें, हम जानते हैं इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। एंड इंडिया की इस इंडेक्स में रैंक आ जाती है 23rd, मतलब सस्टेनेबली अगर हम देखें इसकी रेस में इंडिया 24th पोजीशन पे आ जाता है। टॉप किसने किया? यहाँ पर न्यूजीलैंड के द्वारा टॉप किया गया। ये मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी है। फॉर 3rd कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। UK 2nd, ऑस्ट्रेलिया 3rd पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। मार्क दिस। यहाँ पर आप डाटा प्रॉपर एक लिस्ट के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस भी। तो अभी रिसेंटली RBI का एक डाटा रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं उसमें हमें इन्फ्लो देखने को मिला है टू $7.9 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फर्स्ट हाफ में $6.8 बिलियन था। इसी के अलावा जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, मतलब इंडिया से जो पैसा बाहर गया है, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली ऑफ 14.88% ईयर ऑन ईयर। वहीं पे अगर हम देखें जो ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो 25.7% ईयर ऑन ईयर से ग्रो होती हुई हमें दिखी। नेक्स्ट आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड MMA। इनके द्वारा एक MOU साइन हुआ ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है ना, लोकल करेंसीज में बढ़ सके। RBI कौन सी हो गई? हमारे इंडियन रुपीज़ को। MMA हो गया मालदीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी, तो इनकी करेंसी कौन सी हो गई? मालदीवियन रुपया। तो इंडियन रुपीज़ INR एंड मालदीवियन रुपया, इन दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगा, मतलब जो ट्रेड होगा एक दोनों कंट्रीज के बीच में, वो इन दोनों के करेंसीज के एक्सचेंज से होगा। इससे क्या होगा? एक तो ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, राइट। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ट्रेड एक दूसरे की कंट्रीज में यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखेगा एंड बेटर रिलेशंस होते हुए दिखेंगे इंडिया एंड मालदीव्स के बीच। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडसइंड बैंक एंड BFIL। इन्होंने पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ, ताकि भारत संजीवनी कृषि उत्थान स्कीम को लॉन्च किया जा सके। बेसिकली ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है ऑफ BFIL। BFIL क्या है? BFIL है आपका भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, जो कि एक 100% सब्सिडरी है IBL की। तो BFIL एंड IBL का ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव रहेगा, राइट, जो कि है भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव। इसके अंदर बात की जाएगी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने की, 10,000 FPOs को सेटअप करने की, उनको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके, राइट, प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर सके एंड जो भी FPO के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, यह है आपका भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं श्रीराम म्यूचुअल फाइनेंस। इन्होंने मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड को रिलीज किया, जिसका न्यू फंड ऑफर आपका 18 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 2 दिसंबर तक रहेगा एंड ये मल्टी सेक्टर रोटेशन थीम पर बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। हम बात कर रहे हैं अब्दुल्लाई माइगा। इनको अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। 43 ईयर्स के ये रहेंगे एंड ये सक्सीड करेंगे चौगल कोकाला माइगा को। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये अपॉइंट किए गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। ये अभी वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कहाँ के? ऑफ एमामी ग्रुप के, एंड इन्होंने टेक ओवर किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिकी ड्यूरिंग द फिकीज 97th एनुअल कन्वेंशन, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था। एंड ये सक्सीड किनको करेंगे? अनीश शाहत को ये सक्सीड करेंगे, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महिंद्रा ग्रुप एंड महिंद्रा लिमिटेड के। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्टिस सूर्यकांत की, राइट। इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का, राइट, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है एंड ये सक्सीड करेंगे BR गवाई को। अगर मैं जस्टिस सूर्यकांत की बात करूं तो इन्होंने सर्व किया एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 2018।
नेक्स्ट आ जाते हैं सोनू सूद, काफ़ी फेमस एक्टर हैं, राइट। इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है एंड एडवाइज़र फॉर थाईलैंड टूरिज्म, मतलब इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पे एम्बेसडर एंड एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है फॉर थाईलैंड टूरिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर। कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे मॉर्गन स्टैनली एशिया, सोसाइटी जनरली, इन्होंने अभी स्टेक एक्वायर किया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में वर्थ 2301 करोड़ रुपीज़। यहीं पे अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली इन्होंने 5.4% का स्टेक यहाँ पे एक्वायर करा है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पेस एक्स के ओनर कौन है? इलॉन मस्क याद रखेंगे, पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे आने वाले 3 से 4 सालों में, राइट। हिस्ट्री में पहले व्यक्ति होगा जो इतने अमीर होगा, जिनकी नेटवर्थ इतनी होगी, राइट। तो स्पेस एक्स इन्होंने लॉन्च किया अभी छठा फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्टारशिप रॉकेट अबॉर्ट्स अटेम्प्ट टू कैच बूस्टर, राइट। इनका ये छठा फ्लाइट टेस्ट था स्टारशिप रॉकेट का। ये काफ़ी बड़ा रॉकेट है, राइट, एंड प्लानिंग है कि इसकी मदद से हम मार्स पे भी जाएंगे एंड मून पर गुड्स की सप्लाई होगी, करेक्ट। तो ये स्टारशिप है, इसको टेक्सास में टेस्ट किया गया था फ्रॉम यूएसए एंड इसका जो रॉकेट है वो क्रैश किया कहाँ पर? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। आर्चरी की बात करेंगे। आर्चरी में ज्योति सुरेखा वेनम, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड यहाँ पर हैं अभिषेक वर्मा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द जीटी ओपन 2024 का। ये जो जीटी ओपन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था इवेंट? ये आपका लग्जमबर्ग में हमें देखने को मिला था। इंडिया की इस जीटी ओपन में कौन सी पोजीशन रही मेडल टैली में? तो 3rd पोजीशन रही। लग्जमबर्ग की 1st पोजीशन रही इन द मेडल टैली। नेक्स्ट आप यहाँ पे मेडल टैली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आईबीएसएफ है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। वर्ल्ड बिलियनर चैंपियनशिप हुई अभी, जहाँ पर पंकज अडवाणी ने 28वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया, अपना 28th वर्ल्ड टाइटल इनके द्वारा जीता गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री पर। लेजेंडरी सारंगी मास्ट्रो एंड पद्मा अवॉर्डी पंडित राम नारायण, इनका निधन हो गया 96 की एज में मुंबई महाराष्ट्र में। इनको पद्माश्री से 1976 में, पद्मा भूषण से 1991 में एंड पद्मा विभूषण से सन 2005 में सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। हम बात करेंगे वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक की। 18 से 24 नवंबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस डे का ऑब्जर्व करने का मेन एम, बेसिकली आपको पहले यही पता होना चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है। मतलब आप एक ही दवाई बार बार लेते हैं ना, तो उसका जो इफेक्ट है ना, आप कहीं ना कहीं देखते हैं वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो आदी हो जाएंगे उस दवाई की एंड वो अपने हिसाब से उसको अडेप्ट कर लेंगे। इन द लॉन्ग रन भी देखें तो हम एक ही मेडिसिन कंटिन्यूसली हमें नहीं लेनी चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होती है बॉडी में वो बन जाती है, करेक्ट। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, अगर हमें मेडिसिन को, वैक्सीन को आगे कंटिन्यू रखना है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आज की मेडिसिन हैं, राइट, वो इन फ्यूचर हमारी सेम इन्फेक्शन के लिए, सेम डिजीज़ के लिए क्या पता काम ना करे, क्योंकि बॉडी उसका रेजिस्टेंस बना ले, राइट। तो ये वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ, ये थीम रहेगी इस डे की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पार्ट पर। यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल्स हम देख चुके हैं। देन धर्मेंद्र प्रधान जी एंड मनसुख मांडविया जी, इन दोनों के द्वारा मिलकर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई। देन ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन हुआ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। 10वां एडिशन ऑफ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुआ एंड 8वां एडिशन ऑफ काउंटर आईईडी एक्सरसाइज हुआ गुरुग्राम में। डीएडीएफ ने डिस्ट्रीब्यूट किया राजभाषा अवार्ड्स को, जो कि 2nd एडिशन रहेगा सुरभि मैगजीन की रिलीज की। दो चीज़, डीएडीएफ ने राजभाषा अवार्ड्स लॉन्च किए एंड 2nd एडिशन ऑफ सुरभि मैगजीन यहाँ पे अनवील की गई। देन इंडिया रैंक किया 23rd इन द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में। देन हम बात करेंगे ईसीबी नेट फ्लोज राइज टू 7.9 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। आरबीआई एंड एमएमए, मतलब इंडिया से इंडियन रुपया एंड मालदीव से मालदीवियन रुपया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता हुआ देखेगा, लोकल करेंसीज का ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखेगा। दैन इंडसइंड बैंक एंड बीएफआईएल ने पार्टनर किया टू लॉन्च भारत संजीवनी कृषि उत्थान। देन श्रीराम म्यूचुअल फंड ने न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया, जो कि एक मल्टी सेक्टर फंड रोटेशन के लिए रहेगा। देन अब्दुल्ला माइका, इनको अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर माली का। देन हर्षवर्धन अग्रवाल, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है फिकी का। नेक्स्ट आ जाते हैं जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ
एस सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का। देन सोनू सूद को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर थाईलैंड टूरिज्म के लिए। मॉर्गन स्टैनली सोसाइटी जनरली इन्होंने एक्वायर किया स्टेक इन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया छठा फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्टारशिप रॉकेट। देन आर्चरी की बात करें तो इंडिया की थर्ड पोजीशन रही मेडल टैली में इन जीटी ओपन एंड ज्योति सुरेखा वेनम इनको गोल्ड मेडल इन्होंने जीता एंड अभिषेक वर्मा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। देन आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की बात करूँ तो पंकज अडानवी ने अपना 28th वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है। लेजेंडरी सारंगी माएस्ट्रो एंड पद्मा अवॉर्डी पंडित राम नारायण इनका निधन हो गया। देन वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया? इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये सीरिया, इंडिया एंड मॉरिशस के द्वारा खेला जाता है, राइट, इन 3 कंट्रीज के द्वारा। ये चौथा एडिशन था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का, फुटबॉल का इवेंट है ये भी। सीरिया के द्वारा इस बार का 4th एडिशन ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा ब्रांड ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 का, जो कि ब्राजील में होगी? तो लेज यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे। लेज आप जानते हैं चिप्स ब्रांड है बहुत बड़ा, तो वो स्पॉन्सर करेंगे फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 को ब्राजील में। नेक्स्ट, उन इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत इन द फाइनल्स ऑफ एटीपी 2025 ह्वांगझो ओपन 2024 में। तो जीवन जी के द्वारा यहाँ पे अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत के द्वारा ये मिलकर यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ था? तो पैडल कप किसके द्वारा जीता गया? इंडोनेशिया के द्वारा ही इस पैडल कप को जीता गया है, मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड इंडिया ने क्लेम किया दिस, इंडिया हैज क्लेम्ड दिस स्पॉट इन द फर्स्ट एवर टूर्नामेंट अपीयरेंस और ऑल्सो द फर्स्ट एवर पैडल कॉम्पिटिशन जो इंडिया का हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे, राइट। इंडोनेशिया का गोल्ड, फिलीपींस का सिल्वर मेडल था यहाँ पे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट स्टेट किया दैट इंडिया लॉस्ट 33.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप ड्यू टू एक्सेस रेन्स एंड एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर्स ड्यू टू ड्रॉट 2015 से 2021 के बीच? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया एंड इसमें हमें जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिली वो ये थी कि क्लाइमेट इरेगुलरिटीज की वजह से, हीट वेव्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इरेगुलर मॉनसून की वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स लैंड है उसको यहाँ पे लूज किया। इवन सेवरल इंडियन सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इनको लॉस हुआ ऑफ ऑलमोस्ट $160 बिलियन का 2021 में, बिकॉज ऑफ राइजिंग और बिकॉज ऑफ जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से इंपैक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज बाय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में अमंग द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, वो कितना था? वो था 6.6% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ FY25। यहीं पे जो मेल्स हैं अबव 15 ईयर्स एंड अबव, उनका जो डिक्रीज हो गया टू 5.8%, वेयर जो फीमेल्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली ऑफ 9% तक। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी को रैंक किया गया 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट? तो ये रहेगी रेजर पे। ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इस लिस्ट पर आई है रेजर पे एंड ये ओनली कंपनी है जो कि इस लिस्ट में रहेगी। 3300 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर इस लिस्ट में फोर्ब्स क्लाउड 100 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो है ओपन AI। सैम ऑल्टमैन यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नेक्स्ट, किस फैमिली को रैंक किया गया फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट स्यूरेन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2024 के हिसाब से? तो वो है अंबानी फैमिली। इनकी फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बजाज फैमिली एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाती है बिरला फैमिली। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली रिलीज किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक एनुअल रिपोर्ट स्टेटिंग दैट इंडियाज ओवरऑल टेली डेंसिटी इंक्रीज्ड from 84.51% at the end of March 2023 to 85.69% at the end of March 2024? तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट, डैश हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड विद AAA+ रेटिंग। तो यहाँ पे अमूल यहाँ पर सामने निकल के आया है। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड वो है अमूल। अगर मैं फूड सेक्टर की बात करूं तो फूड सेक्टर में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड निकल के आया है? वो है नेस्ले। फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट में नेस्ले ने यहाँ पे टॉप किया इन
ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ठीक है, तो ब्रांड्स फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट के हिसाब से अमूल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड निकल के सामने आया है AAA+ रेटिंग के हिसाब से फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इनकी अमूल की जो वैल्यूएशन है 11% से बढ़ती हुई दिखी टू $3.3 बिलियन। उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो उस मिसाइल का क्या नाम है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। देखो, अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ईस्टर्न ब्रिज। राइट, यहीं पे अगर मैं बात करूं आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा। एंड ये अल नजा का याद रखेंगे 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट। तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को? तो जोधपुर राजस्थान में ये आपका इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया और सिटी कौन सी है? जोधपुर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश की गई थी, कमीशन की गई थी INS सातवाहना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उस फैसिलिटी का नाम बताओ, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो वो है विनित्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के डिफेंस क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी रिसेंटली किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेंटिनल-2C सैटेलाइट यूजिंग लास्ट वेगा रॉकेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये एरियाना स्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड ये सैटेलाइट आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी करने का काम करेगी, उससे क्रूशियल डाटा एनवायरमेंट से रिलेटेड ये लाएगी। Who has been recently presented with the Olympic Order in Gold for his support to the 2024 Paris Olympic Games? तो वो कौन है? वो है इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट है फ्रांस के। एंड इनका जो वर्क था, राइट, इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक गेम्स होस्ट करे थे, ऑर्गेनाइज कराए थे, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हुई थी, तो इसके लिए इनको यहाँ पे ऑनर किया गया। नेक्स्ट, विच इंडियन एक्टर हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द यूथ आइकन अवार्ड 2024 फॉर एंटरटेनमेंट एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024? सो किस इंडियन एक्टर को यहाँ पे सम्मानित किया गया? आयुष्मान खुराना के लिए। ये तो थे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। यहीं पे अगर मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करूं तो वो आ जाते हैं नीरज चोपड़ा, राइट, जैवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्ड ऑन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI लिस्ट? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो किन को यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया है? अक्षित बंसल नहीं रहेंगे इस लिस्ट पे, बाकी सभी इस लिस्ट पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द अवार्ड दैट वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम टू 15 नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एट एन इवेंट जो कि राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में हुआ था। तो नर्सेज को जो अवार्ड दिया जाता है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है, राइट, जिनको हम बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या जिनको हम बोलते हैं इन्होंने बेसिकली बहुत काम किया था, राइट, सोशल वर्क करा था, करेक्ट। एंड इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट। ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है नर्सिंग प्रोफेशनल ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। कौन से रेलवे स्टेशन को अभी अवार्ड दिया गया नॉन सब अर्बन ग्रुप 1 स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? तो किस रेलवे स्टेशन को यह दिया गया है स्टेटस? NSG1 का। यह है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, NSG1 स्टेटस यहाँ पे इनको दिया गया है। इस NSG1 स्टेटस का ना एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे अगर एनुअल रेवेन्यू मोर देन 500 करोड़ रुपीस आ रहा है सालाना, या फिर वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इस NSG1 स्टेटस से सम्मानित किया जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया 2024 का UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट मल्टी सेक्टरल एक्शंस टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs एंड मेंटल हेल्थ? तो किसको सम्मानित किया गया? वो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। इन्होंने वेरियस इनिशिएटिव्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे हैं जिसमें आपके हेल्थ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, राइट, अफोर्डेबल हेल्थ सॉल्यूशंस लाने के लिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किए गए इनके द्वारा, और इसी के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर्सनैलिटी को रिसेंटली ऑनर किया गया था ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड से इन UK पार्लियामेंट? वो है विनोद बच्चन को। ये काफ़ी फेमस बॉलीवुड
फिल्म प्रोड्यूसर हैं एंड इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके में। नेक्स्ट, उस मूवी का नाम बताओ जो कि अभी 97th अकेडमी अवार्ड जो कि ऑस्कर्स 2025 में ऐड की गई फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर, तो वो है लापता लेडीज। लापता लेडीज जहुनु बराऊ, राइट, इनके द्वारा इस फिल्म को अभी रिसेंटली डायरेक्ट किया गया था। ये असमीज डायरेक्टर हैं एंड लापता लेडीज़ यहाँ पे एंटर कर गई है। ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रहेगी फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। अभी जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ था जहाँ पे किंग्स जेवलिन थ्रोअर ने सेकंड पोजीशन सिक्योर करी विद 87.86 मीटर एट द 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। तो इंडिया के नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सेकंड फिनिश किया। फर्स्ट किसने फिनिश किया ये आप मुझे होमवर्क में बताओ। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 सिंगापुर एयरलाइंस ग्रैंड प्रिक्स जो कि मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ इन सिंगापुर। तो किन के द्वारा जीती गई सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ सेकंड पोजीशन पे कौन थे? मैक्स वर्स्टैपन थे जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर कौन थे? वो थे ऑस्कर पिएस्ट्री जो कि मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th फाइट चेस ओलंपियाड जो कि हंगरी बुदापेस्ट में हुआ। तो इंडिया ने यहाँ पे बोथ ओपन एंड वीमेन्स कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ द एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट? लेवर कप 2024 का हुआ। लेवर कप आपका टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड के बीच में खेला जाता है। मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। इन दोनों में से किसने जीता ये आप मुझे होमवर्क में बताओ, ठीक है। तो ये 7वां एडिशन था मेंस टेनिस टूर्नामेंट का लेवर कप का। ये कहां पर देखने को मिला था? तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को हाईलाइटिंग दैट इंडिया वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 75 years टू रीच 1/4 ऑफ यूएस पर कैपिटा? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक, जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि इंडिया को अगर पर कैपिटा इनकम मैच करना है ऑफ यूएसए तो इंडिया को 75 years लगने वाले हैं। चाइना की बात करें तो चाइना को 10 साल लग जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं वियतनाम की, इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया को 70 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनकी रिपोर्ट आई वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 की। इंडिया की रैंक क्या थी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $51 बिलियन। तो इंडिया की पोजीशन 8th रही इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2023 जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है $51 बिलियन। यहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें, इनकी फर्स्ट पोजीशन आई विद एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $836 बिलियन, फॉलोड बाय यूएसए ऑन सेकेंड पोजीशन एंड ब्राजील ऑन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया जो दर्शाता है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 डिक्रीज हो गया टू 13% रिप्रेजेंटिंग अ 15-year लो। तो ये रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 12वीं एडिशन है ऑफ दिस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 की। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग 2024 बेस्ड ऑन NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग निकाली गई। ये 9th एडिशन है ऑफ इंडियन रैंकिंग्स जिसमें पूछा गया कि किसने टॉप किया इन द ओवरऑल कैटेगरी। तो IIT मद्रास ने ऑफ चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पे टॉप किया है इन द ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सेकेंड पोजीशन पे बात करें तो IISc बेंगलुरु कर्नाटका एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है IIT बॉम्बे। उन क्रिकेटर का नाम बताओ जिनको ऑन बोर्ड किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। सो राहुल शरद द्राविड, इनको यहाँ पे ऑन बोर्ड किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो वो रहेंगे जाफर हसान। जाफर हसान नए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जॉर्डन के। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये रहेंगी मनु बाकर, राइट। ये एक शूटर है और पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया के लिए जीते।
नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। तो किन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज द 68th प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का, तो वो कौन रहेंगे? सांग वोक हम यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, देन किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये सक्सीड किन को करेंगे? ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ एडीए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो किन को अभी अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एडीए? वो है जितेंद्र जे यादव को। नेक्स्ट, किन को स्वान इन किया गया एज द 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? कौन बने हैं 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? वो है आतिशी जी। ये सक्सीड कर रही है अरविंद केजरीवाल को, एंड ये थर्ड वीमेन चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अनुरा कुमारा दिसंके, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाता है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द इंडियन एयरफोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30th of September 2024? तो किन को अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? तो कौन रहेंगे? वो हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि मोन्जा इटली में हुई थी। तो किसके द्वारा जीती गई है? चार्ल्स लेसलर के द्वारा जीती गई। चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड ये इनका सेकंड इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल रहेगा, जो कि 2019 में पहली बार इन्होंने जीता था और अब दूसरी बार 2024 में जीत लिया है। सेकंड पोजीशन पे कौन आए? मैक्लेरन के ऑस्कर पिएस्ट्री, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। देन थर्ड पोजीशन पे आए मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली वन द नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा? तो कार्तिक वेंकटरमन, इन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीत लिया, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये 61st एडिशन था एनुअल नेशनल चेस चैंपियनशिप का, जो कि इंडिया में हुआ। नेक्स्ट, नेम द फुटबॉल क्लब टीम दैट रिसेंटली वन देयर मेडन दुरंत कप एट द 133rd इंडियन ऑयल दुरंत कप, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। तो उस फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इन्होंने पहली बार दुरंत कप को जीता है। दुरंत कप किससे बिलोंग करता है? कौन से स्पोर्ट से? फुटबॉल से बिलोंग करता है। और इस बार 133rd एडिशन देखने को मिला था, जो कि स्पॉन्सर किया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन, एंड ये स्पर्श के ऊपर काम करेगा। स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक, एंड इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट। एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की, मार्क करेंगे। 2 से लेकर 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली, एंड इंडिया से INS ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट? तो ये है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली नेस्ले इंडिया के कौन नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं? सेकंड क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किनको नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एंड किस चीज़ के लिए उस डिस्कवरी का भी नाम बताओ। नेम प्लस डिस्कवरी, 2 चीज़ बतानी है। तीसरा क्वेश्चन, अभी नोबेल पीस प्राइज एज वेल एज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स,
ये दोनों किन को मिले ये भी नीचे आप कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों ये थे आपके सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के, नेबर्स के साथ, उन्होंने बताना अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक चाहिए मुझे आज की वीडियो में।